اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال دولت میں اگر آپ انسان اضافہ چاہتے ہیں تو ماہ رمضان اس کے لیے بہت ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں اگر آپ اپنے رزق میں برتری چاہتے ہیں تو یہ مہینہ ہاتھ سے جانے نہ دیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کیا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز کے ذریعے اصحاب رسول سے رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی خیر و برکت کو مزید واضح کیا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وحی اترنے والی ہے؟ کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ نبی اقدس نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور بھی بہت ہی زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ببرکت اس رمضان المبارک کو اتنا ببرکت قرار دیا ہے کہ یہ عبادت کے لیے اور اللہ پاک سے مانگنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی مہینہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان بہت بدبخت انسان ہے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہوں کو بھی نہ بخشوا سکے، اگر انسان اپنے رب سے کوئی بھی چیز اس مہینے میں مانگے گا تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ بہت زیادہ بھائی ایسے ہیں جو کہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں، ہم کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں اس میں ہمیں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ کوئی بھی کاروبار شروع کر دیتے ہیں، اگر کوئی بڑے سے بڑا کاروبار بھی شروع کر دیتے ہیں۔ کینیڈا سے ایک بھائی نے کال کی اور انہوں نے بتایا کہ مجھے اس قدر نقصان ہو جاتا ہے کہ اگر میں اپنا کوئی ہوٹل بنا لیتا ہوں تو اس قدر مجبور ہو جاتا ہوں کہ اپنے ہوٹل کے ہوتے ہوئے بھی میں کسی دوسرے کے ہوٹل میں کام کرتا ہوں، میرے ہوٹل میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی۔ تو آپ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے میرے خیر و برکت ہو جائے، جس سے میرے مال میں خیر و برکت ہو جائے۔ تو آج کا جو عمل ہے یہ بہت زیادہ آزمایا ہوا ہے، اتنا آزمایا ہوا ہے کہ یہ آپ کو اتنی ترقی عطا فرما دے گا کہ اگر آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ یہ وظائف بہت ہی لوگوں نے کیے ہیں۔ الحمدللہ میں اگر نام لے کر کے آپ کو بتاؤں تو شاید میں بتا نہیں پاؤں گا۔ 1 سال پہلے کی بات ہے، امریکہ سے ایک بھائی نے اسی سلسلے میں بتایا کہ میرا ایک سٹور ہے یہاں پر، وہ بالکل بھی نہیں چلتا اور ساتھ ہی ایک ہندو ہے اور اس کا سٹور ہے، میرا اس سے کافی بڑا ہے لیکن معلوم نہیں، بالکل بھی نہیں چل رہا۔ تو میں نے انہیں یہی عمل بتایا۔ آج الحمدللہ ان کا خود ماننا ہے
कि इस अमल की वजह से आज उनका कारोबार इस कदर तरक्की कर रहा है कि वो कभी सोच भी नहीं सकते। तो आज मैं वही अमल आपको बता रहा हूँ कि आपने जो अमल करना है इंशाअल्लाह आप कीजिएगा, अल्लाह पाक आपके मालो दौलत में बहुत ही ज़्यादा इजाफा अता फरमा देंगे। आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इंसान का रिज्क अल्लाह पाक ने लिख दिया होता है, लेकिन अगर इंसान अपने रब से मांगता है, अपने रिज्क को मांगता है, तो दुआ के ज़रिए से इंसान का रिज्क में भी इजाफा हो जाता है। इस माह मुक़द्दस में जब आप कोई भी चीज़ अपने अल्लाह पाक से मांगेंगे तो अल्लाह पाक आपको इतनी अता फरमा देंगे, क्योंकि दौलत का खजाना सिर्फ एक अल्लाह पाक के हाथ में है। उसके अलावा ये इख्तियार न किसी ज़ात के पास है, न फरिश्तों के पास है, न अनबिया के पास है, किसी के पास नहीं है। दौलत का इख्तियार सिर्फ एक अल्लाह पाक के हाथ में है। रिज़्क़ एक ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार सिर्फ मालिक के कायनात ने अपने पास रखा है। कोई शक नहीं, हर इंसान को पाक रिज़्क़ अता फरमाता है और रिज़्क़ में इजाफा व फराही के मौके भी देता है। मगर इंसान की ये फितरत है, वो भूल जाते हैं रिज़्क़ का वादा रब्बुल इज़्ज़त ने कर रखा है, लिहाजा हमारी किस्मत में लिख दिया गया होता है। दाना पानी मुकद्दर हर चीज़ अल्लाह पाक ने लिख दी होती है। और हर चीज़ जब अल्लाह पाक ने लिख दी होती है तो फिर भी इंसान बहुत ज़्यादा नाशुक्र है। अपने रब से जब मांगता है, जब उससे कोई अता कर देते हैं तो वो फिर इस बात को ही भूल जाता है कि मुझे इसके पीछे अल्लाह पाक की, इसके पीछे सिर्फ एक अल्लाह पाक की ज़ात का हाथ है। याद रखें कि अगर आप इस चीज़ से नहीं हटेंगे, अगर आप अल्लाह पाक का जिक्र नहीं करेंगे और अल्लाह पाक को याद नहीं करेंगे, तो ऐसी बहुत ही ज़्यादा मिसालें हैं जो फैक्ट्रियों के मालिक भी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक भी मोहताज हो जाते हैं। वो भी मोहताज हो जाते हैं। बड़े बड़े कारखानों, बड़े बड़े कारोबार वाले जब अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्र नहीं करते और अल्लाह पाक की दी हुई जो दौलत होती है वो अल्लाह पाक की जानिब से ही आती है और रिज़्क़ की कदर नहीं करते, तो अल्लाह पाक वो रिज़्क़ उनसे उठा लेते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही अमल बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप अगर इस काम को करेंगे तो अल्लाह पाक आपके मालो दौलत में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमा देंगे। मालो दौलत इतनी होगी कि 7 नस्लों तक ये जाएगी। ये अमल रमज़ान के पहले रोज़े से ही आपने स्टार्ट करना है और पहले हशरे तक आपने इसको जारी रखना है। आपने रोज़ा अफ्तार होने से 20 मिनट पहले आपने ये अमल करना है। अगर कोई शख्स भी चाहता है कि उसके कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, उसको नुकसान होता दिखाई देता है अपने कारोबार में, लेकिन अगर चाहता है कि उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और अगर वो मिट्टी में भी हाथ डाले तो वहाँ से भी उसको फ़ायदा हो सके, तो उनसे गुजारिश है कि वो अव्वल और आखिर, इंसान को ये चाहिए कि वो अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ ले और दुरूद इब्राहिमी पढ़े और फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 5 101 मरतबा तस्बीह कर ले और तस्बीह करके उसे अफ्तारी की हुई चीज़ों पर वो दम कर ले, फूंक मार दे, दम कर दे। और ये अमल रमज़ानुल मुबारक के पहले हशरे तक जारी रखे। और वो आयत करीमा ये है,
उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अगर कोई भी शख्स इस अमल को करेगा तो अल्लाह पाक उसके माल और दौलत में बहुत ही ज़्यादा बरकत अता फरमा देंगे। दोबारा से आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले अफ्तारी से 20 मिनट या आप 30 मिनट पहले घर में से कोई एक फर्द, एक अगर माँ है तो अपने बच्चे के लिए कर सकती है, बीवी है तो वो अपने खावंद के लिए कर सकती है। चुनाचे अगर ऐसा वक्त जब आता है तो ज़्यादातर औरतें अपने काम काज में लगी होती हैं, तो एक मर्द भी अपने लिए कर सकता है। करना क्या है, सबसे पहले जो अमल आपको बता रहा हूँ इसके शुरू में भी और आखिर में भी 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 5 101 मरतबा पढ़नी है और पढ़ने के बाद अफ्तारी की चीज़ों पर आपने दम कर देना है और फिर उसको खा लेना है। तो इंशाअल्लाह आपके कारोबार में इतनी ज़्यादा बरकत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर मिट्टी में भी हाथ डालेंगे वो भी सोना बन जाएगी। और इस अमल को 10 दिन तक जारी रखना है। अव्वल आखिर इस आयत करीमा से पहले, इस आयत मुबारका से पहले आपने पढ़ना है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 5 है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। आपने पढ़ के अफ्तारी की चीज़ों पर दम करना है और जब आप उन पर खाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इतनी खैर व बरकत अता फरमा देंगे कि आपकी आने वाली 7 नस्लें भी उससे सैर ना हो पाएंगी। मतलब इतनी ज़्यादा अल्लाह पाक दौलत अता फरमाते हैं कि 7 नस्लों तक, 7 पुश्तों तक ये चीज़ चली जाती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस अमल को रमज़ान अल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने को हाथ से जाने न दें। इस मुक़द्दस महीने में अगर आप कोई एक अमल भी कर लेंगे तो अल्लाह पाक आपके इस अमल की वजह से आपको बहुत बेपनाह दौलत अता फरमा देंगे। मेरे भाइयों, रमज़ान अल मुबारक आने वाला है, इसकी कदर करें, जहाँ तक हो सके इसकी कदर करें। ये अल्लाह पाक से मांगने का महीना है। अल्लाह पाक से मांगने का, अगर आपके गुनाह भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत गुनाह हैं आपके, अपने गुनाहों से अल्लाह पाक ने कभी आप पर नेमतें बंद की हैं। जो लोग ये दुआएं नहीं मांगते, अपने ऊपर ज़रा गौर तो करें कि वो दिन रात अगर अल्लाह पाक की नाफरमानी करते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको रिज़्क देना बंद कर दिया है, कि अल्लाह पाक ने आपके हाथ ले लिए हैं, कि अल्लाह पाक ने आपसे अपनी नेमतें ले ली हैं। सबसे बड़ी नेमत पानी की है कि अल्लाह पाक ने आपसे नेमतें ले ली हैं, कभी नहीं ली। वो तो गफूर रहीम ज़ात है, जब उसका नाम लेते हैं तो वो आपके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। जब बंदा अफ्तारी के वक़्त अल्लाह पाक से दुआ मांगता है तो रब्बुल इज़्ज़त बहुत ही ज़्यादा गफूर रहीम ज़ात हैं। वो इतनी गफूर रहीम ज़ात हैं, वो बहुत हया वाले हैं। वो जब बंदे के हाथों को फैलाए हुए हाथों को देख लेते हैं तो उनसे हया आ जाती है और उन्हें जो कुछ उनकी ज़ुबान पर होता है और दिल में होता है अल्लाह पाक सब चीज़ें अता फरमा देते हैं। इस वजह से आपसे कहता हूँ रमज़ान अल मुबारक की आप कदर करें और सिर्फ अमल को ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क में इजाफ़ा हो और आपके मालो जो भी आप कारोबार कर रहे हैं उसमें इजाफ़ा हो, तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में मैं आपसे ये इजाज़त भी चाहता हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आगे तक शेयर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।